चैप्टर 4 टाइम सीरीज. टाइम सीरीज मीनिंग देखो, द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज. देखो नीचे टेबल दिया है, ईयर अरेंज किए है, जीडीपी है, इन्वेस्टमेंट है, मीन्स ईयर असेंडिंग ऑर्डर में होगा. ईयर किस में होगा? असेंडिंग ऑर्डर में. आगे देखो बेटा उसका मीनिंग, ये डेफिनेशन एग्जाम में बहुत बार आई है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज? देखो, अ टाइम सीरीज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. एक ऑब्जर्वेशन का आपको सेट दिया होगा, उसके मुताबिक आपको फॉर्मूला यूज करके सम करना होता है. टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. एक स्पेसिफाइड फिक्स टाइम पीरियड आपको दिया होगा. मीन्स अ टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. ओके बेटा, ये अंडरलाइन कर लो. तो बेटा रीड करो कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. नंबर 1 लॉन्ग टर्म कंपोनेंट. रीड नाउ मोहम्मद. रीड नाउ. The variation seen in the variable of a time series over a very long period of time is the effect of long-term component or trend. The variable of a time series is generally found to have a continuous increase or decrease. This phenomenon is due to trend. For example, decreasing value of rupee in the international market, increasing usage of mobile phone, rising population of the country, decreasing death rate, etc. The intermission short-term variation are ignored as the long-term variation in the time series are studied in the trend. The overall changes taking place in the variable of the series are considered here. स्टॉप. The factor is स्टॉप. देखो, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लॉन्ग टर्म के बाद चेंज आता है, वो होता है लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, एक फैक्टर है. ओके. नंबर 2 सीजनल कंपोनेंट. ओके अस्मिना, रीड नाउ. सीजनल कंपोनेंट. Seasonal component. The variation occurring in the time series variable among regularly over a very short period of time is the effect of seasonal component. The period of oscillation of such variation is usually less than a year. It is necessary to record the short-term values in the time series to study this variation. It is not possible to get the information about the seasonal component if the yearly values of the given variable are available. The seasonal component affect the time series as follows. ओके बेटा, एक चीज रह गई, 1 मिनट. एंड करो बेटा, ये अंडरलाइन करो. वी विल डिनोट component showing trend in the variable yt of the time series tt. वेरिएबल को डिनोट किया जाता है yt में और टाइम सीरीज ट्रेंड को दिया जाएगा tt में. t मीन्स टाइम एंड t मीन्स ट्रेड. कैपिटल T मीन्स ट्रेड एंड स्मॉल t मीन्स टाइम. ओके. नेक्स्ट सीजनल कंपोनेंट. सीजनल कंपोनेंट अंडरलाइन पेज नंबर 161. We shall denote this short-term component of a time series by ST. ST, seasonal component. Okay, next one, cyclical component. ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ. देखो बेटा, जो पहले के ज़माने में ट्रेन चलता था, साइकिल एक ट्रेन चलता था, उसके बाद वो ट्रेन चला गया, अब वो वापस आया है. सपोज लॉन्ग हेयर का जो बॉयज लॉन्ग हेयर रखते थे पहले, अमिताभ बच्चन के ज़माने में, राजेश खन्ना के ज़माने में, तो वो अब वापस आया है ट्रेंड कि लॉन्ग हेयर रखना है. ओके. तो वो साइकिलिकल है, एक बार चला गया वापस आया, वापस जाएगा वापस आएगा, तो साइकिलिकल है. जैसे इन्फ्लेशन जाता है डिफ्लेशन आता है, डिफ्लेशन जाएगा इन्फ्लेशन आएगा. ओके. तो वो साइकिलिकल है. तो साइकिलिकल कंपोनेंट टाइम सीरीज डिनोटेड बाय सीटी. क्या है? CT. ओके. सो सानिया, रीड नाउ cyclical component. Sania. The variations occur in the time series variable at approximately regular intervals of the more than 1 year are the effects of cyclic component. The variations occurring due to this component are less regular as compared to seasonal component. The period of oscillation of these variations
can be 2 to 10 years, and in specific circumstances it can also be 10-15 years. The cyclical component is also considered as a short-term component, as the time interval of variations due to this component is less than that of the time for the whole series, which can be 40-50 years or even more. The cycles of boom and recession are example of these variations. These cycles pass through the 4 stages, namely depression, recovery, boom, recession. These variations are found in the time series of trade and financial measures such as production, price of an item, prices of shares in share market, investment, etc. The traders can plan suitably with the help of estimate of time and measures of these variations. This component of the time series is denoted by CT. ओके देखो स्टॉक मार्केट में भी आता है कि अप जाता है डाउन जाता है, अप जाता है डाउन जाता है. ओके तो वो भी साइकिलिकल है. नेक्स्ट रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं जिसके अंदर वो रैंडमली है, इरेगुलर है कि कुछ हो या ना हो. ओके तो रीड करो अजमीना. रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट. Random or irregular component. The effect of irregular or random component is also seen in the variation of the variable of time series in addition to the approximately regular short-term components like seasonal and cyclical, which also give short-term effect. If the values in the series change due to sudden and unpredictable causes, the changes are called as random variation. The time interval and effect of this variation is not certain. The variation which can be attributed to any one of the trend, seasonal component, cyclical component, is the effect of random component. These fluctuations appear completely unexpected and are irregular. It cannot be predicted, it does repeated regularly and cannot be controlled. These variations occur due to natural disaster like earthquake, floods, or due to man-made predicaments like war, strike, political upheaval. The estimate can contain error due to this component. This component is denoted by RT. स्टॉप. रेगुलर, रैंडम और इरेगुलर कंपोनेंट डिनोटेड बाय आरटी. अब देखो वाईटी का मीनिंग है वेरिएबल टी, वेरिएबल ऑफ टाइम. टीटी का मीनिंग है ट्रेन टाइम. सीजनल टी, सीजनल टाइम. सीटी मीन्स साइक्लिकल एंड आर मीन्स रैंडम. ओके कोई भी एक चीज फाइंड करनी हो, सपोज आरटी फाइंड करना है तो साइज चेंज कर दो, वाई टी माइनस टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी. सपोज एस टी फाइंड कर रहे हैं, एस टी यहाँ पे आएगा, वो और तीनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी. ओके तो अब आपको आगे ले जाता हूँ. मेथड ऑफ डिटरमाइन. एक मिनट ये अंडरलाइन करो, ये लाइन. shown as the additive model of the time series. ये additive model है, ये एग्जाम में आता है सेक्शन बी के अंदर कि व्हाट इज द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज. ओके बेटा अंडरलाइन कर लो. मेथड ऑफ डिटरमाइन ट्रेंड. अब यहां से सम स्टार्ट होते हैं बेटा, और सम एकदम इजी है. इजी मीन्स सिर्फ आपको सिंपल कैलकुलेशन आती हो तो सम एकदम इजी है, पूरे मार्क्स लेने हैं 5. देखो मेथड ऑफ डिटरमाइन ट्रेंड. नंबर 1 ग्राफिकल मेथड एग्जाम में नहीं आती है, बाद में कराऊंगा. नंबर 2 मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखो सी द टेक्स्ट बुक. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. ध्यान से सुनना बेटा. टाइम सीरीज के 3 मेथड है. नंबर 1 ग्राफिकल, नंबर 2 लीस्ट स्क्वायर और नंबर 3 मूविंग एवरेज. तो इसमें नंबर 2 पहले कर रहे हैं. तो इसमें बेस्ड लीनियर इक्वेशन, बेस्ड इक्वेशन ट्रेंड y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी. जिसने आगे के चैप्टर किए होंगे उसको पता होगा, नहीं पता है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो. यहाँ पे आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू फाइंड करनी है. आगे क्या होगा वो सम करते करते पता चलेगा. तो b की फॉर्मूला है n समेशन टी वाई माइनस समेशन टी इंटू समेशन वाई डिवाइड एंड समेशन टी स्क्वायर माइनस समेशन टी होल स्क्वायर
और एक ही फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी टी बार. ओके, एग्जाम्पल 3. रीड नाउ मोहम्मद. Example 3. The profit earned in lakhs by a company making computer is as follow. Find the linear equation for the trend from this data by least square method and estimate the profit for the year 2017. ओके, तो पहले आपकी कॉलम ईयर दी है. लीनियर इक्वेशन बोले तो ये यूज होती है फॉर्मूला लीस्ट स्क्वायर मेथड. तो ईयर की कॉलम में 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015. ओके, उसके बाद प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल वाई. वेरिएबल क्या है? वाई. सो 31, 35, 39, 41 एंड 44. तो सबसे पहले ईयर को कन्वर्ट कर दो टी में, टाइम में. किसमें करो? टाइम में, टी. तो कुछ करना नहीं है, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा हो. तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये हमें रखना है. सम में नहीं दिया होगा, सम के अंदर दिया नहीं होगा. ओके, उसके बाद टी और वाई को मल्टीप्लाई करो और टी का स्क्वायर करो. टी और वाई को मल्टीप्लाई करो और टी का स्क्वायर करो. तो समेशन टी टोटल होगा 15. अब टी वाई करते हैं, टी इंटू वाई. तो टी इंटू वाई क्या कितना आता है? देखो 31 इंटू 31, 31 इंटू 1 31, 35 इंटू 2 70, 39 इंटू 3 117, सॉरी 39 इंटू 3 117, 41 इंटू 4 164 and 44 into 5 220. प्लस करोगे समेशन टी वाई 602. अब टी स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना क्या करना है बेटा? समझ में आ रहा है? Yes. तो टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करो. 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. तो समेशन टी स्क्वायर 55. ओके, अब हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू और ए की वैल्यू. सो बी वैल्यू, बी की फॉर्मूला है एंड समेशन टी वाई माइनस समेशन टी इंटू समेशन वाई डिवाइड एंड समेशन टी स्क्वायर माइनस समेशन टी होल स्क्वायर. तो ये y का टोटल बाकी है, समेशन y. समेशन y का टोटल आएगा 190. आगे देखो n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5. ऑब्जर्वेशन नंबर मीन्स n 5 दिए. 5 मल्टीप्लाई समेशन टी वाई 602 माइनस समेशन टी 15 समेशन y 190 डिवाइड n 5 समेशन टी स्क्वायर 55 माइनस समेशन टी होल स्क्वायर है. ध्यान में रखना, समेशन टी क्या? होल स्क्वायर. समेशन टी 15 होल स्क्वायर. 5 इंटू 602 करोगे 3010 माइनस 15 इंटू 190 2850 डिवाइड 5 इंटू 55 275 माइनस 225 15 स्क्वायर 225. पेज पलटा रहा हूं. देखो 3010 माइनस 2850 माइनस करोगे तो 160. कितना आएगा? 160 डिवाइड 275 माइनस 225 50. सो 160 डिवाइड 50 करो. देखो 160 डिवाइड 50 3.2. बी की वैल्यू क्या आएगी? 3.2. अब फाइंड करना है ए. एक ही फॉर्मूला वाई बार माइनस बी टी बार. तो वाई बार और टी बार हमने फाइंड नहीं किया, अब फाइंड करेंगे. तो देखो साइड पे कर रहा हूं. वाई बार की फॉर्मूला समेशन वाई बाई एन. तो समेशन वाई कितना है? 190 डिवाइड एन 5
190 divide 5, 38. And T bar, summation T by N, summation T 15 by 5, 3. So Y bar 38, Y bar 38 minus B की वैल्यू 3.2 मल्टीप्लाई T बार 3. 38 माइनस 3.2 इंटू 3, 9.6. माइनस करोगे तो 28.4. सो लीनियर इक्वेशन अब फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी. तो a की वैल्यू आई 28.4 प्लस b की वैल्यू 3.2 t. a की वैल्यू 28.4 प्लस 3.2 t. अब आपको एस्टिमेट फाइंड करना है. एस्टिमेट फाइंड करना है अगर 2017 का. तो देखो यहाँ पे 2015 की t की वैल्यू क्या है? 5. हमें फाइंड करना है 2017. तो अगर यहाँ पे 2016 होता तो t की वैल्यू 6 होती. ये ध्यान में रखना. 2016 होता तो t की वैल्यू क्या होती? 6. तो 2017 होगा तो t की वैल्यू क्या आएगी? 7. तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू लेनी है 7. तो y कैप 28.4 प्लस 3.2 इंटू 7. तो 28.4 प्लस 3.2 into 7, 22.4. So 50.8 in lakh. 50.8 in lakh. ओके, समझ में आया बेटा?